शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। आज देखिएगा आपको क्लास 6 के बच्चे प्लीज अटेंटिव रहें। आप इधर देखिएगा, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं निकोबोबिनस। नाम जरा बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसकी सिलेबल को तोड़ लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। सिलेबल से मुराद ये है कि जुबान से एक मरतबा जो लफ्ज़ अदा हो उसको हम कहते हैं सिलेबस, सिलेबल। ये देखिएगा, नी को बो बी नस, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिलेबल हैं। तो अगर आप सिलेबल को तोड़ते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिएगा, मैं रीडिंग कर रहा हूँ निकोबोबिनस का, चैप्टर 1 है ये, क्लास 6। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड। ये एक बहुत ही, मैं पहले रीडिंग कर दे रहा हूँ। हु एवर स्टक हिज टंग out at the prime minister. His name was Nicobobius. He lived a long time ago in a city called Venice, and he could do anything. Of course, not everybody knew he could do anything. In fact, only his best friend Rosie knew, and anybody took any notice of Rosie said, because she was always having wild ideas anywhere. One day, for example, Rosie said to Nicobobius, "Let us pull up every single weed on your doorstep." "Let's not," said Nicobobius, which is what Rosie thought he would say. "In that case," replied Rosie, "it is discover the land of dragons." "Don't be daft," said Nicobobius. "How can we do that?" "Because you can do anything," said Rosie. So the next morning, just as it was getting light, Rosie threw little pebbles up at Nicobobius' shutters. Nicobobius was still half asleep when he looked out. "Hey, what is the matter?" Rosie said. He asked. "Shh," whispered Rosie. "I have got the buns and the lemonade." "What for?" asked Nicobobius. "Supplies for the road," whispered Rosie. "Where are we going?" asked Nicobobius. "We are going to find the land of dragons," whispered Rosie. "Don't you remember?" "Oh, I thought you might have forgotten about that." "Oh," said Nicobobius. "No fear," said Rosie. "It is one of the best ideas I have ever had." "What about the wedding?" said Nicobobius. "Come on," said Rosie. So they set off through the early morning town
when they got to the end of a narrow street where they lived, they met a night watchman who said, "Where are you two going at this hour?" "We are going to look for the land of dragons," said Nicobovinus. "You can't do that at this time of the morning," said the night watchman. But before he could grab them, Rosie and Nicobovinus were sprinting away as fast as they could. And they did not stop running until they had crossed 3 bridges and tipped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall and the dog leaped to its feet, barking as if it had thought Domesday had arrived. For a moment they were sure it was going to bite them, but then it noticed that 2 buns that had rolled into the gutter, and it wolfed them down, barked "Thank you," and ran off to tell its friends. "We are going to get far without supplies," said Rosie gloomily. "I wonder if I could pick a few of those," said Nicobovinus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. "Of course you can," said Rosie. "Stand on my shoulders." So Nicobovinus stood on Rosie's shoulders and climbed into the wall, but the tree was farther away than he thought, and as he reached out, he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. Nicobovinus looked back up at the high wall, but there was no way he could climb back. "What I am going to do," he yelled. "You will think of something," Rosie yelled back, crossing her fingers very hard. "Oh," said a voice behind Nicobovinus. Nicobovinus did not stoop to look who it was. He ran straight into a tree. पेज नंबर 8 पे देखें. "Got out," said the voice, and Nicobovinus felt 5 thick fingers on his neck. "Oh," said Nicobovinus, "I have been waiting for you," said the voice, and Nicobovinus felt 5 more thick fingers around his wrist. But Nicobovinus, instead of trying to run away, doubled himself up and went backward. At last he could. So the man's legs were knocked forth under him and he landed in a pile of leaves. "Are you all right?" called Rosie, but she did not hear any reply except for the man who growled, "Just you wait, both of you, both of you." "Oh dear," said Rosie, "sounds like trouble." And she was right. ये चैप्टर 1 ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट हम चैप्टर 2 बाद में पढ़ाएंगे. पहले आप इसका तर्जुमा आप देख लें. आप इसको घर में रीडिंग कीजिए, बार बार इसको पढ़िए ताकि आपको सही पढ़ना आ जाए, सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, सही वर्ड कैसे आप पढ़ेंगे ये आप घर पे आप देखते रहिए और इसके मशक करते रहिएगा. मैं आप तर्जुमा उसका बता रहा हूँ आपको. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड. ये एक बहुत हैरत अंगेज बच्चे की कहानी है. हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ तक कि वो प्राइम मिनिस्टर से भी बात करने में कभी नहीं चूकता था. हिज नेम वाज निकोबोविनस. उसका नाम निकोबोविनस है. आप इस तस्वीर में देखें, यह आपको निकोबोविनस का आपको नज़र आ रहा है. यहाँ आप देखिएगा ये रोजी खड़ी हुई है. इस आप तस्वीर में भी देखें आप, निकोबोविनस और ये रोजी, ये दोनों खड़े हुए हैं.
ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है। हिज नेम वॉज निको बॉबिनस, ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। ये बहुत ज़माना कदीम की बात है कि वो रहा करता था इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस, एक ऐसे शहर में जिसका नाम वेनिस है। एंड ही कुड डू एनीथिंग, और वो कोई भी चीज़ कर सकता है, उसके लिए कुछ बड़ी नहीं है, हर चीज़ वो कर सकता है। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग, यकीनन हर आदमी नहीं जानता था कि वो ये हर काम कर सकता है। इनफैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोज़ी, हकीकत में सिर्फ उसकी जो बहुत अच्छी दोस्त है रोज़ी, ये बात सिर्फ उसी को मालूम था, न्यू। एंड नोबडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग रोज़ी सेड, और रोज़ी ने कहा कि कोई भी उसके बारे में न कभी लोग ध्यान देते हैं न उसके बारे में जानते हैं, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनी वेयर। बल्कि उसका जो है ना वो वाइल्ड आइडियाज़ होता है, अजीब अजीब ख्यालात होते हैं उसके। वन डे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक दिन रोज़ी सेड टू निको बॉबिनस, रोज़ी ने निको बॉबिनस से कहा, oh let's pull up every single weight on your door step, कि आप अपने दरवाजे के सामने ये जितने घास फूस लगे हुए सबको उखाड़ दो, सबको उखाड़ दो। लेट्स नॉट सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा कि नहीं 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 नहीं, विच इज़ वट रोज़ी थाउट ही वुड से। अब रोज़ी ने सोचा कि अब वो क्या कहेगा। इन दैट केस रिप्लाइड रोज़ी, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, आइए हम सब डिस्कवर करते हैं, पता चलाते हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स का। डोंट बी डेफ्ट, बेवकूफ़ मत बनो, सेड निको बॉबिनस। ये डेफ्ट का मतलब होता है सीली, बेवकूफ़। हाउ कैन वी डू दैट, हम ये कैसे कर सकते हैं? बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, इसलिए कि तुम कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, सेड रोज़ी। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, इसलिए दूसरी सुबह को जब रोशनी निकलती है, सूरज निकलता है, रोज़ी थ्रू लिटिल पेबल्स, रोज़ी छोटे छोटे पत्थर मारती है उसके दरवाजे खिड़की के ऊपर, एट नोकलस शटर्स। निको बॉबिनस वॉज स्टिल हाफ asleep व्हेन ही लुक्ड आउट। निको बॉबिनस जो है अभी सोया हुआ नहीं था, आज खुली आंख से देखता है। ए व्हाट्स मैटर रोज़ी, ही सेड, उसने पूछा कि क्या बात हो रोज़ी। विस्पर रोज़ी, रोज़ी ने कहा एकदम खामोश रहो। आई हैव गॉट द बंस एंड द लेमोनेड, कि मैंने ये जो बन खाते हैं मीठी रोटी और ये लेमोनेड यानी लेमू का जो रस वगैरह होता है वो मैंने पाया है। व्हाट फॉर आस्क्ड निको बॉबिनस, किस लिए? तो सप्लाई फॉर द रोड, जब हम लोग निकलेंगे रोड की तरफ तो वहाँ हम लोग खाएंगे। विस्पर रोज़ी, वेयर आर वी गोइंग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम लोग जा रहे हैं पता करने, पता चलाने कि ये लैंड ऑफ ड्रैगन्स कहाँ है। विस्पर रोज़ी, रोज़ी ने आहिस्ता आहिस्ता कहा या कानाफूसी किया। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुमको मालूम नहीं है, याद नहीं है? ओह आई थाउट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, मेरे ख्याल में तुम शायद भूल गए हो, सेड निको बॉबिनस। नो फियर, डरने की कोई बात नहीं है, सेड रोज़ी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ आई हैव एवर हैड, ये सबसे अच्छे ख्यालात हैं जो मैं हमेशा रखती हूँ। व्हाट अबाउट द वेडिंग, अब वेडिंग के बारे में, ये जो घास फूस है उसके बारे में क्या ख्याल है? सेड निको बॉबिनस। कम ऑन सेड रोज़ी, रोज़ी ने कहा क्या? सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, इसलिए वो लोग सुबह को शहर की तरफ रवाना हो गए। व्हेन दे गॉट टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट, जब वो तंग सी गली के किनारे पहुँचे, वेयर दे लिव्ड, जहाँ वो लोग रहते थे, दे मेट नाइट वॉचमैन, एक चौकीदार से इनकी मुलाकात हो जाती है। हु सेड वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, अभी आप लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, इन्होंने जवाब दिया कि हम लोग जा रहे हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स को तलाश करने। सेड निको बॉबिनस,
यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के वक्त आप ये काम नहीं कर सकते हो, सेड द नाइट वॉचमैन। बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, बल्कि इससे पहले कि वो उनको पकड़े, रोजी एंड निको बॉबिनस वे आर स्पिटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। वो लोग निकल के भाग जाते हैं, जितनी तेजी से भाग सकते हैं भाग गए। एंड दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग, और वो लोग रुके नहीं until they had crossed the 3 bridges, जब तक उन लोगों ने 3 पुलों के पार नहीं कर लिया। एंड tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall, और एक कुत्ता जो गार्डन वॉल के सामने सोया हुआ था उसको फलांग गए। रोजी बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, रोजी का जो बोतल है जिसके अंदर वो लेमू का जो है ना, आप मुरब्बा कहिए या कुछ कहिए, वो टकराता है दीवार से और वो टूट जाता है। एंड द डॉग लिप टू इट्स फीट, और डॉग छलांग लगा के वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बार्किंग एज इफ ही हैड थाउट, लगता है भौंकने जैसा कि उसने सोचा कि ये डॉम इस डे है, हैड अराइव्ड, वो आ गया है। फॉर ए मोमेंट दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, इन लोगों को पक्का यकीन हो गया कि कुत्ता अब उनको काटेगा। बाइट का मानी होता है दांत से काटना। बट देन इट नोटिस द 2 buns दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, लेकिन इन लोगों ने देखा कि 2 बन यानी मीठी रोटी जो बन हम लोग खाते हैं, ये गटर के अंदर वो तैर रहा है। एंड इट उल्फ्ड देम डाउन, और ये उनको नीचे ले आता है, बाग भोंकता है। ओ थैंक यू, एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, वो दौड़ के भाग जाते हैं ताकि अपने दोस्त को बताएं। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाईज, बगैर इसके हम लोग आगे नहीं जा सकते, सेड रोजी ग्लूमली, बड़ी अफसुर्दगी से वो कहती है रोजी। आई वंडर इफ आई कुड पिक ए फ्यू ऑफ दोस्त, मुझे हैरत अगर उनमें से कुछ हम लोग ले लें, सेड निको बॉबिनस गेजिंग अप एट एन एप्पल ट्री, एक सेब के दरख्त को देखते हुए। ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वाल के दूसरी जानिब। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी, यकीनन तुम ये काम कर सकते हो, रोजी ने कहा। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। सो निको बॉबिनस स्टूड ऑन रोजी शोल्डर्स, इसलिए निको बॉबिनस रोजी के कंधे पर चढ़ गया। एंड क्लाइम इनटू द वॉल, और इस तरह से वो वॉल जो दीवार है उसको ऊपर चढ़ गया। बट द ट्री वॉज फार्दर अवे देन ही थाउट, लेकिन दरख्त जो है उनके ख्याल से, उनके सोच से ज़रा आगे था। एंड एज ही रीच्ड आउट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, अपनी तवाज़ुन को वो बरकरार नहीं रख सका। एंड फेल विद ए क्रैश, और एक जोरदार आवाज़ के साथ वो नीचे गिर जाता है। डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ऑन ही हैड एवर बीन, एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में, बाग में, जहाँ वो कभी रहता था। निको बॉबिनस लुक बैक अप एट द हाई वॉल, निको बॉबिनस दोबारा उस ऊंची दीवार को देखता है। बट देयर वॉज नो वे ही कुड क्लाइम बैक, लेकिन कोई तरीका नहीं था कि वो उस पर चढ़ सके। What am I going to do? He yelled. उसने कहा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? You will think of something. सोचो किसी चीज़ के बारे में। रोजी yelled back. रोजी ने उसको दोबारा कहा, crossing her fingers very hard, और अपने हाथों को बड़ी तेजी से ममोड़ते हुए। Oh, said the voice behind Nico Bobinus. निको बॉबिनस के पीछे से आवाज़ आती है। निको बॉबिनस did not stop to look, वो रुकता नहीं है ये देखने के लिए कि वो कौन आदमी है। ही रैन, वो दौड़ गया। स्ट्रेट इनटू अ ट्री, बिल्कुल सीधे एक दरख्त की जानिब। गॉट यू, सेड द वॉइस, पालिए, वॉइस ने कहा। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 थिन फिंगर्स ऑन हिज नेक, और उसने 5 उंगलियों को अपने गर्दन पर महसूस किया जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। Oh, said Nico Bobinus, I have been waiting for you, said the voice. उस आवाज़ ने
उससे कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड निकोबोविनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स, और मोटी मोटी उंगलियों को वो अपने ये पर गर्दन पर महसूस किया। अराउंड हिज रिस्ट, ये रिस्ट कहते हैं कमर को। बट निकोबोविनस इंस्टेड ऑफ टाइम टू रन अवे, लेकिन निकोबोविनस बजाय इसके ये कोशिश करता कि भाग जाए, डबल हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड्स एट लास्ट एज ही कुड, आखिर में जितना वो कर सकता है वो बैक किया। सो द मैन्स लेग वेयर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, इसलिए उसका जो लेग है उसको वो खटखटाता है। एंड ही लैंडेड इन ए पाइल ऑफ लीव्स, और इस तरह से वो लकड़ी का एक बोआ ये होता है, उसमें पत्ते लगे हुए थे, उस पर जाके वो उतर जाता है। आर यू राइट? कॉल रोजी, रोजी ने कहा कि क्या तुम ठीक हो? बट शी डिड नॉट हियर एनी रिप्लाई, लेकिन वो कोई जवाब सुनती नहीं है। एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्रोल्ड, सिवाय उस आदमी के जो गुर्राता है। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, बस आप दोनों ही इंतज़ार करो। ओ डियर सैड रोजी, साउंड लाइक ट्रबल, ये आवाज़ तो बड़ा तकलीफदा है, बड़ा डरावना है। एंड शी वॉज राइट, और वो बिल्कुल हक बजानिब है, सही है। तो इस तरीके से पहला चैप्टर आपने देखा कि मैंने पहले रीडिंग किया, उसके बाद उसके मानी भी बताए। आप बिल्कुल इसी तरह से आप घर में आप इसको पढ़िए, आप इसको समझिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो फिर आप ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।